and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion, and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstrations across towns and villages and the spontaneous communal harmony and the rule of the This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion, and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstration across towns and villages and the spontaneous outpouring of moral and material support towards tourists reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony, and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union Government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society, and in particular the media, to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. The needs to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity, and well-being of Kashmiri students and citizens residing or traveling outside Jammu and Kashmir, and to take all necessary measures to prevent any incidents of harassment, discrimination, or intimidation. This House calls upon all political parties, religious and community leaders, youth organizations, civil society groups, and media houses across the nation to maintain calm, reject violence and divisive rhetoric, and work collectively to uphold peace, unity, and constitutional values. Further resolve that the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir reaffirms its unwavering commitment to foster an environment of peace, development, and inclusive prosperity for all its citizens, and to resolutely defeat the nefarious design of those who seek to disrupt communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir. पहलगाम में हुई हलाकतों पर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करारदाद पेश की गई कि ये ऐवान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेगुनाह शहरियों के पर किए गए वहशियाना और गैर इंसानी हमले पर अपने गहरे सदमे और गम का इजहार करता है और तहरीक करता है कि ये ऐवान वाज़ह तौर पर इस घनावनी बुज़दिलाना हरकत की मजम्मत करता है जिसके नतीजे में मासूम जानें ज़ाया हुई, दहशतगर्दी की इस तरह की कार्रवाइयाँ कश्मीरियत की अखलाकियात, हमारे आइन में दर्ज इक़दार और इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी के जज्बे पर बराह रास्त हमला है जो जम्मू कश्मीर और हमारी कौम की तवील अरसे से खुसूसियत रही है। ये ऐवान मुतासिरीन और उनके खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। हम उन लोगों के साथ अपनी गहरी तअज़्ज़ुज़ का इजहार करते हैं जिन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और इनके गम में शरीक होने और ज़रूरत की इस घड़ी में उनकी हमायत करने की अपनी इज्तिमाई अज़्म की तस्दीक करते हैं। ये ऐवान शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता है जिन्होंने बहादुरी से सयाहों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी हिम्मत और बेलोस मोहब्बत कश्मीर की हकीकी रूह को मुजस्सम करती है और आने वाली नस्लों के लिए एक पायदार तरगीब का काम करेगी। ये ऐवान जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से हमले के बाद
गैरमामूली इतिहाद और हमदर्दी दिखाने पर उनकी सिताइश करता है। कस्बों और देहातों में पुरअमन मुजाहरे और सयाहों के लिए अखलाकी और मादी हमायत का भी बेसाख्ता इजहार, अमन, फिरका वाराना हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी के लिए लोगों की साबित कदमी की तस्दीक करता है। यह ऐवान 23 अप्रैल 2025 को काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास के बाद मरकजी हुकूमत के ऐलान करदा सफारती इकदाम की तौसीक करता है। यह ऐवान इस हमले के मुतासिरीन को चुन चुन के निशाना बनाने की पीछे मजमूम डिजाइन को जहन में रखता है और माशरे के तमाम तबकों और बिलखुसूस मीडिया से अपील करता है कि वो गैर जिम्मेदाराना जज्बात को हवा देकर इस मजमूम साजिश का शिकार न हों और इस बुज़दिलाना हरकत के बाद हमें मुत्तहिद रहने की जरूरत पर जोर देता है, न कि आपस में तकसीम होने पर। यह ऐवान हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की हुकूमतों से अपील करता है कि वो कश्मीरी तलबा और जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम या सफर करने वाले शहरियों की हिफाजत, विकार और बहबूद को यकीनी बनाए और हरासान करने, इम्तियाजी सलूक या धमकी के वाक़ात को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। यह ऐवान तमाम सियासी जमातों, मजहबी और कम्युनिटी रहनुमाओं, नौजवानों की तंजीमों, सिविल सोसाइटी के ग्रुपों और मुल्क भर के मीडिया हाउसेस से पुरअमन रहने, तशद्दुद और तफर्रुक़ अंगेज़ बयानबाजी को मुस्तरद करने और अमन, इत्तेहाद और आईनी इक़दार को बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने का मुतालबा करता है। मज़ीद तहरीक करते हैं कि जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली अपने तमाम शहरियों के लिए अमन, तरक्की और जामिया खुशहाली के माहौल को फ़रोग़ देने और मुल्क और जम्मू कश्मीर की फिरका वाराना हम आहंगी और तरक्की को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की मज़मूम अज़ाइम को हर तरह शिकस्त देने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा करती है। अब ये करारदाद ऐवान के सामने जनाब श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी नायब वज़ीर आला बहस का आगाज करेंगे। आप नहीं बोलना चाहते? ऑनरेबल स्पीकर साहब, के अंदर हमारे जो आए हुए जम्मू कश्मीर के मेहमान थे उन पे इतना बड़ा हमला हुआ। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वो लफ्ज़ नहीं कि किन लफ्ज़ों के साथ हम इस हादसे की निंदा करें। जम्मू कश्मीर का हमेशा इतिहास रहा कि मेहमान नवाजी के लिए जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में पहचाना जाता है और जो भी हमारे घरों से इस जम्मू कश्मीर से होके गया। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जा रहा है। रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस सत्र के बारे में और जानकारी के साथ। रमन, इस सत्र के बारे में क्या जानकारी है? और अभी अभी हमने स्पीकर को सुना जिन्होंने इस पूरे हमले की निंदा की और कहा कि इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और इसकी निंदा की जानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल विवेक। देखिए, ये खास सत्र जो है वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उमर अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज समन किया था और आज 10:30 बजे इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले जिस तरीके से ये आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है, जिस बर्बरता के साथ धर्म को पूछकर हिंदुओं की हत्या वहाँ पर की गई है, एक तरह से नरसंहार जो है वो हुआ है उस पूरे पहलगाम के उस मीडोज के ऊपर, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। और जिस तरीके से खुद जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र चौधरी, उनकी तरफ से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। और इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो हमेशा अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत और जो यहाँ की जो रिवायत है उसको कहीं ना कहीं कलंकित करने की कोशिश जो है वो सीमा पार बैठे हुए आतंकियों की तरफ से की गई है और इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। अब लगातार जो है इस पर बहस की जाएगी। खुद स्पीकर की तरफ से भी कहा गया उन सभी जो इस हमले में शहीद
शहीद हुए देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पर्यटक थे, उनके लिए जो है उन्होंने अफसोस जाहिर किया है, उनके घर वालों के लिए जो है अफसोस जाहिर किया है। साथ ही साथ में इसकी जो है जितनी निंदा की जाए उतना कम है, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी CCS की बैठक हुई थी उसमें जो कुछ कदम जो है सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो उसको सेकंड करती है, यानी कि उससे इत्तेफाक रखती है और इस तरीके के कदम जो है वो उठाने की ज़रूरत थी और वो उठाने चाहिए। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं वो बोलेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुंदर चौधरी की तरफ से हुई है। उसके बाद PDP के अध्यक्ष, PDP के जो नेता होंगे, MLA होंगे, वो भी इस पर बोलेंगे। इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो 28 मेंबर इस समय वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी अपनी बातों को रखा जाएगा। आखिरी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो इस पूरे कंक्लूड करेंगे। निंदा प्रस्ताव जो यहाँ पर लाया गया है उस पर जो है वो अपनी बात जो है वो सामने रखेंगे। जी विवेक। रमन, ये 2 घंटे का ही सत्र बुलाया गया है, जैसे कि जानकारी मिली है 10:30 से 12:30 का वक्त मुकर्रर किया गया है। और दूसरी बात ये कि इससे पहले इस तरह का सत्र शायद ये जो सत्र जो जी रमन, मैं यही कह रहा था कि ये 2 घंटे का सत्र जो है 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के लिए बुलाया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाएगा कि जो लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो इस सत्र के समय को थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। लंच के बाद भी जो है इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे पहले भी देखा गया है कि जब जब इस तरीके का कोई मुख्य बिंदु पर चर्चा करने को लेकर बातचीत जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में या किसी देश के किसी भी विधानसभा सत्र में होती है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इस पर कोई इसमें कोई रोक नहीं है कि 2 घंटे तक के लिए ही जो है ये सत्र रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा के पटल का इस्तेमाल पहली बार पाकिस्तान के लिए निंदा प्रस्ताव के लिए किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये न केवल जम्मू कश्मीर की जनता के लोगों के लिए बल्कि पाकिस्तान को भी एक साफ संदेश होगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है उसको पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था और उसको लगता था कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा की पटल से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते थे। अलगाववादी सोच के नेता जो MLA बनकर यहाँ पर आते थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हक में बात करते थे। कभी कभी पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी पिछले बजट सत्र में हमने देखा कि पाकिस्तान से बातचीत को करने को लेकर जो है कई बार जो है सरकार की तरफ से ही जो है वो पहल करने की कोशिश जो है उनके विधायकों की तरफ से की गई। लेकिन ये एक जरूर है कि इस बार ये पहली बार होगा कि जब किसी आतंकी हमले के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा का मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। क्या ऐसा इससे पहले, मुझे याद नहीं है, शायद आप वहां पर लंबे समय से हैं, क्या ऐसा कभी हुआ इससे पहले कि कभी जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र बुलाकर इस तरह के हमले की निंदा की गई हो और आतंकी जो घटनाएं हैं उसका विरोध किया गया हो? जी देखिए, मेरे जानकारी के मुताबिक करीबन 25 साल से मैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भी कवर कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं। अब तक जो है जब से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके से विशेष सत्र को बुलाकर, एक दिन के विशेष सत्र को बुलाकर और इस तरीके का निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। हम इस चीज़ के भी गवाह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कई बार जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर लगाए गए। कई ऐसे अलगाववादी सोच के नेता जो हैं वो विधानसभा में चुनकर आते थे जो लगातार पाकिस्तान के हक में बात करते थे, पाकिस्तान से बातचीत करने की पेशकश करते थे, आतंकवाद को प्रोत्साहित करते थे, आतंकवाद का महिमा मंडन जो है वो इस विधानसभा के पटल से किया जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं आपको यही बता रहा था कि ये पहला एक ऐसा आतंकी हमला है जिसमें सीधे तौर पर टूरिस्टों को, जो देश के अन्य हिस्सों से आए हुए लोग हैं, निर्दोष लोग, निहत्थे लोग, उनको आतंकियों की तरफ से धर्म पूछकर जिस तरीके से उन्होंने आतंकी हमला किया है और उनका नरसंहार किया है, इससे पूरी तरीके से अगर हम देखें तो कश्मीर, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से देखें तो 80% टूरिज्म के ऊपर ही जो है यहाँ की GDP जो है वो कहीं ना कहीं निर्भर करती है और कश्मीर की रोजी रोटी पर पहली बार इस तरीके से पाकिस्तान ने लात मारने की कोशिश की है। ये नाराजगी जो है वो आम लोगों के अंदर भी नजर आ रही है और उसी नाराजगी को देखते हुए ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। और ये पहली बार पाकिस्तान को भी ये संदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा से जाएगा, जिसको पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना सेटबैक है, या पाकिस्तान में जो चरमपंथी समूह है या पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, TRF जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, ये उनके लिए मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सेटबैक है आज तक का और अभी तक के भारत पाकिस्तान रिलेशन इतिहास का।
देखिए विवेक, ना केवल चरमपंथियों के लिए, आतंकी संगठनों के लिए, बल्कि पाकिस्तान की सरकार के लिए भी जो है ये एक बहुत बड़ा जो है वो थप्पड़ हम कह सकते हैं कि उनके गाल पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ही आतंकवाद को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पालती है, पोसती है, आतंकवादियों को पैदा करती है। पाकिस्तान की सेना लगातार इस बात को लेकर, जो हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट के बाद जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कारगिल में भी जो है वो पाकिस्तान के सैनिकों का किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो हुआ था, और इन्वेडर बनकर वो पाकिस्तान कारगिल की धरती पर जो है घुसपैठ कर आए थे, और वो पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी के जवान थे। तो ना केवल कुछ ऐसे मेंस हम ये कह सकते हैं कि चरमपंथी गुट के लोग जो लश्कर या जैश या हिजबुल के साथ मिले हुए लोग हैं, वो आतंकी संगठन, उनको तो ये एक बहुत बड़ा धक्का जरूर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनको लगता था कि कश्मीर उनकी बपोती है और कश्मीर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को एंडोर्स करते हैं और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने का काम जो है वो कश्मीर की जनता करते हैं, ऐसा पाकिस्तान को लगता था। लेकिन इस हमले के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे देश के लोग एक सुर में पाकिस्तान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, इसीलिए इस विशेष सत्र का जो है महत्व बहुत ज्यादा बन जाता है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पटल का इस्तेमाल पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान की भ्रष्टा करने के लिए, पाकिस्तान की निंदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों के साथ साथ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के लिए भी होगा। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार कई मौकों पर ऑफिशियल तौर पर इस बात को मान चुकी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सो कॉल्ड जिहाद या फिर आज़ादी की लड़ाई जिसे कहते हैं, वो उसको कश्मीर उस आतंकवाद को जो है वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना जो है वो बैक करती है। उनके लिए फंड इस्तेमाल करना, उनके लिए पैसा इस्तेमाल करना, उनके आतंकियों को ट्रेनिंग देना, उनके आतंकियों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आर्मी फैसिलिटी देना। सबसे बड़ी बात तो ये है रमन की आर्मी के ट्रेनिंग कैंप्स का इस्तेमाल आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। आर्मी फैसिलिटेट करती है वहां के टेररिस्टों को, वहां के टेररिस्ट लीडर्स को। हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी के देखरेख में वीआईपी जो है उसमें रहता है, देखरेख में रहता है। मसूद अजहर वीआईपी ट्रीटमेंट के देखरेख में रहता है। सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, दर्जनों ऐसे नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं। ये सब पाकिस्तानी आर्मी के देखरेख में रहते हैं और उनकी सुरक्षा में रहते हैं, और इनकी जो सुरक्षा होती है, ये जो ट्रेनिंग देते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो और एसएसजी के जवान देते हैं। बिल्कुल सही कहा विवेक आपने कि पाकिस्तान के आर्मी के जवान हो, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो हो, वो लगातार इस तरीके की ट्रेनिंगें जो हैं, जो अभी गोरिल्ला वारफेयर की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ी जा रही है, वो बाकायदा एसएसजी के कमांडोज जो हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, और एक बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है और कई दौर की ट्रेनिंग जो है वो होती है, दौराए आम होती है, दौराए खास होती है। इस तरीके के कई स्टेप जो हैं वो इस ट्रेनिंग के बनाए गए हैं और बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी की देखरेख में ही ये सारी ट्रेनिंग दी जाती हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठन के चाहे चीफ हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर हों, या फिर लश्कर के चीफ जिस तरीके से हाफिज सईद हैं, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ जो है सैयद सलाउद्दीन है, इनको बाकायदा आर्मी का प्रोटेक्शन कवर दिया जाता है ताकि ये जहां भी मूव करते हैं, अगर आप इनके कभी भी विजुअल्स यूट्यूब पर निकाल कर देखेंगे तो इनके साथ एक लंबा चौड़ा काफिला जो है वो इनके साथ चलता है पाकिस्तानी आर्मी का। कुछ सादी वर्दी में होते हैं और कुछ पाकिस्तानी आर्मी के वर्दी में भी होते हैं। इसके साथ साथ में जो इनके मेन हेडक्वार्टर हैं, जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में है, लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर जो है वो मुरीदके में है, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर जो है वो मुजफ्फराबाद में है, तो इन हेडक्वार्टर्स को भी पूरी तरीके से सेफ जोन में रखा जाता है, सेफ तरीके से इनको पूरी तरीके से। लेकिन अभी तो ताजा खबर अमन ये मिल रही है पीओके से, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इन ट्रेनिंग कैंप्स को फिलहाल वहां से हटा दिया गया है और जितने भी वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी सबको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, सबको बंकर्स में भेज दिया गया है, ताकि भारत अगर कोई बड़ा एक्शन ले तो उसमें आतंकियों को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही विवेक, आपके पास सही जानकारी है और ये जानकारी हम पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने दर्शकों के साथ साझा भी कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो करीबन 4 ऐसी लोकेशन थी जो जम्मू में 2 लोकेशन थी, एक पुंछ में हॉट स्प्रिंग और नौशहरा का जो बिम्बर का इलाका पड़ता है वहां पर, और कश्मीर घाटी में लीपा वैली और केल का सेक्टर जो है, यहाँ 4 जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, जिसमें 70 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। और ये सारे आतंकवादी जो थे वो लॉन्च पैड पर उस समय मौजूद थे। ये 2016 की बात है। और 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ तब ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। उस समय भी इन आतंकी कैंप को शट डाउन कर आतंकियों को जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान के, उनमें भर भर कर अंदर जो अंदरूनी इलाके पड़ते हैं वहां पर ले जाया गया। वहां पर ले जाया गया, बिल्कुल सही बात है। नजर बनाकर रखिएगा रमन इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दर्शकों ये है कि जो टेररिस्ट हमला करने के लिए आए थे वो टेररिस्ट आखिर कहां गए? पाकिस्तान तो पहुंचे नहीं होंगे, तो वो अभी घाटी में ही छिपे हुए हैं और वो OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ इस वक्त छिपे हुए हैं और उनकी तलाश जारी है और उनको